Hello everyone. Welcome to daily news recap of YPA Bharat Youth Power Academy. Let us start class of 26th August. So today the first article is related to President Draupadi Murmu conveyed her greetings to the nation on the eve of Eid Milad un Nabi and Onam. Eid Milad un Nabi, it is also known as Maulid, and it commemorates the birth of Prophet Muhammad, who is revered as the father of Islam. She extended her greetings to the people for Onam also. Onam is celebrated as an opportunity to express gratitude to nature, particularly marking the arrival of the new harvest. It is a major annual harvest festival which is celebrated with great zeal, and it has a cultural significance in Kerala. Uh, It is a 10-day festival which marks the mythical homecoming of King Mahabali, whose reign is traditionally associated with a golden era of prosperity and equality. तो दो फेस्टिवल आज हैं तो उन्हीं के लिए ग्रीटिंग्स मैंने दी। तो जैसे फेस्टिवल है ओनम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट से रिलेटेड है या फिर किस मंथ में आता है, तो ये है। और इन ओनम boat races which are called Vallam Kali. These are quite important, and it has cultural significance which embodies the rich heritage and community spirit of Kerala. Then a new book named Kaho Kalidas, which is authored by Sri Yugal Joshi and published by Manjul Publishing House, has been launched at the Indira Gandhi National Center for the Arts in New Delhi. And this book delves into the multifaceted life and literary contributions of the renowned poet Kalidas. Kalidas, who is widely regarded as the greatest playwrights and poets in Sanskrit literature, and his exact period is debated among scholars, but many of them places him in the 5th or 4th century CE during the Gupta period. मतलब माना जाता है कि गुप्ता पीरियड के टाइम के ये पोएट हैं, and his notable works include epic poems like Raghuvans Kumar and the play Abhigyan Shakuntalam, which is the recognition of Shakuntala, Malvika Agnimitram and Vikram Varshiyam. तो ये इनका इम्पोर्टेंट जो है वो राइटिंग्स हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट हैं और ये अक्सर पूछी भी जाती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में। और इंडिया का इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट aims to establish and promote and preserve Indian art and culture and heritage. तो कहो कालिदास, ये आप इसको याद रखिएगा, ये लॉन्च हुई न्यू नॉवेल। Then the publication divisions of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, has been honored with 7 awards at the Federation of Indian Publishers Award for Excellence in Book Production 2003. This division works in publishing journals, books, and reference materials across Hindi, English, and Urdu languages in various categories. तो इसके लिए जो publication division है इनको award मिला है, एंड इनका जो भारत 2026 है, इट हैज सिक्योर्ड सेकंड प्राइज। धरती के सेहत, इट वाज अवॉर्डेड थर्ड प्राइज। एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर, it is a prominent representative body for publishers in India, encompassing those who publish in Hindi, English, and other regional languages, and its membership spans across the nation and represent over 80% of the Indian publishing industry. तो आप FIP इससे रिलेटेड आप चीज याद पूछी जा सकती है, तो इसको याद रखिएगा। Then another article is related to Samagra Sishu Bal Swasthya Karyakram, which is a scheme launched for newborn and child health issues related to development and management of social tech and services.
This scheme was launched by Union Minister for Health and Family Welfare on June 29, 2026 during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare. This program एक्सटेंड बियॉन्ड मेयर चाइल्ड सर्वाइवल, मतलब इसमें जो फोकस है वो सिर्फ चाइल्ड सर्वाइवल पे ना होके चिल्ड्रन के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे होता है, जो कि उसके हेल्दी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, नर्चरिंग केयर प्रैक्टिसेस, वेल बीइंग ऑफ मदर्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इलनेसेस और जो डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं उनको सबको ये कवर करता है. The central element of the Samagra Shishu Bal Swasthya कार्यक्रम is its implementation of risk differentiated care. This approach ensured that newborn and children identified as at risk receive more intensive follow up, including होम विजिट्स, क्लोज मॉनिटरिंग एंड enhanced रेफरल सपोर्ट. तो ऐसे बच्चे जो ज्यादा रिस्क में हैं उनको और ज्यादा केयर प्रोवाइड किया जाता है, होम विजिट की जाती है, ताकि जो ये बच्चे हैं इनका जो हेल्थ केयर टीम है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो बेहतर तरीके से उनको देख सके और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और काउंसलिंग की जा सके, ताकि उनके जो फैमिलीज हैं, जो किड्स हैं, उनको एक हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा सके. तो ये न्यू स्कीम चूंकि लॉन्च हुई है, जून में लॉन्च हुई है, ये इम्पोर्टेंट रहेगी. एंड दिस scheme is built upon existing maternal and child health initiatives such as Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, which focuses on 4 Ds. और ये 4 Ds क्या हैं? Defects at birth, development delays, diseases and disabilities in children. तो ये आप याद रखिएगा. ये चूंकि न्यू स्कीम है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो भी हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी आप हमसे कनेक्ट होइए. और हमारी जो डेली न्यूज रिकैप है मैगजीन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन and kindly join us on Telegram, Facebook, and Instagram. The next article is related to a new study that is Sambar, and it reveals distinct South Asian gut microbes. One of the largest and most geographically diverse investigations has found that South Indian gut microbiomes are distinct from those reported in other parts of the world. तो अभी तक जो स्टडीज हुई थी उनमें ज्यादातर जो रिसर्च होती है दैट हैज बीन कंडक्टेड इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशंस, तो उसमें जो साउथ एशिया था उसको लार्जली जो है वो नहीं कवर होता था, बट ये न्यू स्टडी कराई गई है एंड इट हैज रिपोर्टेड दैट द गट माइक्रोबायोम, मतलब जो गट में हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज रिपोर्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड and are shaped by local culture, diet, geography, and lifestyle. South Asia is undergoing rapid urbanization while simultaneously experiencing a sharp increase in obesity, diabetes, and other cardiometabolic disorders. Although urbanization is known to influence the gut microbiome, जैसे कि हमें पता है कि जो changes हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, उसकी वजह से जो फूड हैबिट है वो पूरा चेंज हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसकी वजह से काफी सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली इन द साउथ एशियन पॉपुलेशंस. और चूंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जो अभी तक की माइक्रोबायोम रिसर्च थी, it was mostly focused on European and North American population, leaving behind the South Asian representation. तो अभी ये नए तरीके से स्टडी हुई है. और Biribal Science Institute of Paleo Sciences है. It is an autonomous institution of the Department of Science and Technology and University of Chicago. They have collaborated with other institutions across India, Sri Lanka, and a study to understand how the changing lifestyle influences the gut microbiome across the different cultures, dietary and ecological settings. It has been done, and the study has found
that the changes in the gut microbiome of each community follow its own unique microbiome trajectory. मतलब एक अलग तरह के का हर जो कम्युनिटी है उसका एक अलग माइक्रोबायोम होता है। क्यों? क्योंकि वो जो लोकल फैक्टर्स हैं, जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो डाइट रहा है, जो ज्योग्राफी रहा है, जो लाइफस्टाइल रहा है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और ये जो स्टडी है इसका नाम दिया गया है साउथ एशियन microbiome array, and it was launched for the first time in India by the scientists of Birbal Sahni Institute. And they have studied 575 individuals from 10 culturally and distinct and geographically distinct communities across India and Sri Lanka. एंड तो ये रिपोर्ट जो है, जैसे सांबर रिपोर्ट पूछ दिया कि किससे रिलेटेड है, तो ये आप इसको जाने रहिएगा कि इट इज फोकस्ड ऑन द गट माइक्रोबायोम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। एंड सिंस गट माइक्रोबायोम इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेटाबॉलिज्म, इन इम्यूनिटी एंड क्रॉनिक डिजीजेस। तो टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, ये जरूरी है कि हम इसको समझें कि कैसे जो है वो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पॉपुलेशन में क्या हिस्ट्री रहा है, कैसा है, और उसी के हिसाब से हम फर्दर जो है वो इस पे वर्क कर सकेंगे। और जो भी डिजीजेस हैं जो इंक्रीज हो रहा है डायबिटीज और अदर चीजों में, उस पे वर्क जो है वो कर सकेंगे। तो ये आप इसको याद रखिएगा। देन we are celebrating the 5 years of eShram portal. The eShram portal, it was launched on 26 August 2021 and it has completed 5 years, and it is a significant milestone in India's endeavor to establish a comprehensive social security system for unorganized worker. तो ये जो स्कीम है ई श्रम पोर्टल, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए वर्क करता है। और through this portal, government has created a national database for the workers so that they can be provide benefits under the schemes. It was developed by National Informatics Center. The portal created India's first Aadhaar authenticated national database of unorganized worker, assigned with each registered worker a unique 12-digit universal account number UAN, and its primary objective is to enhance social security। सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने पे ये वर्क कर रहा है, और इस पे भी वर्क कर रहा है कि कैसे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका इस सेक्टर को, ये जो लोग हैं इनको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके इफेक्टिव तरीके से। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पॉलिसी बना सकें, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनका बेहतर के लिए काम किया जा सके। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसीज टाइमली प्लानिंग की जा सके। जैसे पूरा डेटा वर्क रहेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये वर्कर्स हैं, उनका एक नंबर है यूएएन नंबर, और अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस पोर्टल के थ्रू हेल्प उनको प्रोवाइड की जा सकी है, जी की जा सकती है। और इफ वी see the unorganized worker, it is defined as a home based, self employed, or wage worker in the unorganized sector, or a worker in the organized sector who is not covered by ESIC, EPFO और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में नहीं आता है, तो ये जो भी वर्कर्स हैं ये इनमें इंक्लूड रहते हैं। And this portal has evolved as a simple registry to unified service delivery platform with the introduction of eShram one-stop solution. And this was launched on October 21st, 2024. So that will be also important for prelims examination. These dates are very important। और जैसे जिन जो भी ऐसी स्कीम्स हैं जो पोर्टल्स हैं जो लॉन्च हुए, जैसे मैंने कल बताया था कि यूपीआई के 10 years हो गए हैं, ई श्रम के 5 years हो गए, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब इनके एक सर्टेन टाइम पीरियड ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आप इनको याद रखिएगा। और ये जो सोल्यूशन डेवलप किया गया है, इट इंटीग्रेट्स वेरियस वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग एंड पेंशन सर्विसेज, bringing together 15 social security and welfare schemes, which include Pradhan Mantri Shram Yogi, Shram Yogi Man Dhan Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये इसमें भी इंक्लूड हैं। And this new the e-shram portal, it connects workers with employment opportunities through the national career service, and it provides access to skilling and apprenticeship resources via the skill india digital hub। तो इसमें अगर आप रजिस्टर हैं और फिर आपको डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्किल इंडिया से रिलेटेड चीजें चलती हैं, जिसमें आपको टेक्निक सिखाई जाती है, स्किल सिखाई जाती हैं, तो उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं वो। और उसके बाद इनको डिफरेंट गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनमें एज अ वर्कर्स जो है वो काम करने में हेल्प मिलती है, उनको इनरोल किया जाता है, जो भी एलिजिबल वर्कर्स होते हैं इनको। और इससे उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और बेहतर होता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ई श्रम पोर्टल, ये सपोर्ट करता है मल्टीलिंगुअल फंक्शनैलिटी इन 22 लैंग्वेजेस, एंड इट इज पावर्ड बाय भाषणी प्लेटफॉर्म। 22 लैंग्वेजेस जो मैंने बात कही, ये 8th शेड्यूल में जो भी हमारे लैंग्वेजेस हैं उनको सब में ये इंक्लूड करता है, तो हर भाषा में इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये एक रोबस्ट फाउंडेशन इसने स्टैब्लिश किया है फॉर एन इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है उनका नंबर भी ज्यादा है, उनका पूरा एक आइडिया देने के लिए और ये सारी जो डेटाबेस तैयार करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को देखने के लिए ये वर्क कर रहा है। और इसके 5 years कंप्लीट हो गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देन इलाहाबाद हाई कोर्ट recently ruled that wearing a headscarf cannot be established as an essential religious practice of Islam. And this observation was made in response to a Muslim student's petition seeking permission to wear hijab along with her school uniform. तो एक डिवीजन बेंच थी comprising Justice J. Munir and Indrajit Shukla. They have dismissed the petition filed by a class 11 student of Tagore Public School in Prayagraj on 21st of August. The student has argued that wearing a headscarf was an essential religious practice protected by her fundamental rights under Article 14 and 19(1)(a) of the Constitution. And the student, she claimed that she previously wore a headscarf at the same school from class 6 without objection. However, the High Court stated that the fact of wearing the scarf for several years did not create an enforceable right to compel the school। मतलब अगर आप इतने सालों से पहनते आए हैं तो ये स्कूल को कंपेल नहीं कर सकता है, या कोई ये एक enforceable राइट नहीं है कि ये अपना जो यूनिफॉर्म की पॉलिसी है उसको ऑल्टर करें या रिलैक्स करें। और कोर्ट ने कहा है कि नो अदर गर्ल स्टूडेंट इवन फ्रॉम द सेम रिलीजियस कम्युनिटी वाज सीन वेयरिंग अ हेड स्कार्फ इन फोटोग्राफ्स फ्रॉम वेरियस क्लासेस। तो इसमें जो पटिशनर को कहा गया है, और इसमें जो कोर्ट है उसने यूनानिमसली उनका ओपिनियन रहा है कि इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू द एक्सटेंड दैट फेथ वुड बी jeopardized इन इट्स एब्सेंस। कि मतलब कि अगर नहीं पहनते हैं तो जो फेथ है उसको किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचेगा। और इसमें जो कोर्ट है इन्होंने रेफरेंस दिया है, जजमेंट आया था बॉम्बे और कर्नाटका हाई कोर्ट का सिमिलर मैटर्स पे, तो इस पे। और हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि दैट द डिस्प्यूट वाज प्राइमरली अबाउट कंप्लायंस विद इन अ इंस्टीट्यूशनल ड्रेस कोड। मतलब आप किसी भी जैसे स्कूल है या कॉलेज है, कोई एक इंस्टीट्यूशन है, वहां का जो ड्रेस कोड है तो उसको आपको कंप्लाई करना होगा। और ये कहीं से जो आपका फ्रीडम ऑफ फेथ है उसको इंटरफेरेंस इसमें ये नहीं कर रहा है। एंड द स्कूल्स रिक्वायरमेंट वाज कंफॉर्मिटी टू इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन of which a uniform is an essential part, and it is not an attempt to curtail the petitioner's freedom of faith। तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो एक essential part है स्कूल का, कि मतलब उनका कौन क्या ड्रेस कोड है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं से भी किसी के जो फेथ है उसके फ्रीडम में जो है वो curtailment नहीं हो रहा है। जैसे इस तरह के जो इश्यूज होते हैं तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सोशल मुद्दों से जुड़े ये हैं इश्यूज, तो ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अब जैसे आर्टिकल 14 और 19(a) की बात कही गई, तो ये दीज आर रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, तो ये इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं।
Then the next article is related to defense and security. Defense Minister Rajnath Singh has given the approval for the transfer of missile system technologies developed by DRDO to India's private defense industry. And government has said that it is a strategic move which is intended to boost indigenous manufacturing capabilities within the country. गवर्नमेंट का कहना है कि ये काफी क्रूशियल स्टेप है और इससे ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का डिफेंस सेक्टर में, और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट का जो प्रोडक्शन है वो उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। They said that the overarching objective is to enhance India's domestic manufacturing capacity, और इससे जो एमएसएमई है इन जो सेक्टर इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी डेवलप जो है होगी, एंड दे कैन पार्टनर विद अदर इंडस्ट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द डिफेंस सप्लाई चेन। तो ये है, और डीआरडीओ ने कहा है कि इट इज कमिटेड टू कोलैबोरेट क्लोजली विद इंडियन इंडस्ट्रीज। तो जो ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज की बात होती है कि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, मतलब ये कि मेड इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है इसको बूस्ट मिले, जो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में जैसे कि डीआरडीओ में, इसरो में, तो उनका जैसे हमने देखा है कि स्पेस में भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अब आ गई हैं, तो डिफेंस में भी अब इन्होंने प्रोडक्शन अलाउ किया है कि इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो जुड़ेंगी और उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं इसके हार्म भी है, क्योंकि ये चूंकि गवर्नमेंट बॉडीज हैं, तो अगर ये सिर्फ रिसर्च करेंगी और उस पे वर्क करेंगी, फिर फर्दर प्रोडक्शन में अगर इनका कहीं ना कहीं कमी होगी, तो उसको लेके एक चिंता भी जताई जा रही है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी तरफ से, कि कहीं इससे इन इंस्टीट्यूशंस को हार्म ना पहुंचे। तो ये सारी इसमें इश्यूज भी जो है वो इन्वॉल्व हैं, बट गवर्नमेंट ने फिलहाल ऑर्डर कर दिया है कि ये जो है वो इन्वॉल्व होंगी अब, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम आगे कर सकेंगी बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ डीआरडीओ। Then India has strongly condemned an attack on peacekeepers who are serving on the with the UN mission in South Sudan, and incident was reported in where death of Ethiopian security personnel happened, और इसका इंडिया ने काफी विरोध कहा है, उन्होंने ट्रिब्यूट भी पे किया है इथियोपियन ब्लू हेलमेट को। जैसे ये टर्म है द ब्लू हेलमेट, इट रिफर्स टू द मिलिट्री पर्सनल हु आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फोर्सेस। तो जो यूनाइटेड नेशन फोर्सेस हैं, जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, ये डिप्लॉय की जाती हैं बाय द यूएन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी इनके जो फोर्स पे हमला हुआ था और इसमें जो है वो इनकी डेथ हुई है, तो इसका इंडिया ने कंडेम किया है। और जैसे ब्लू हेलमेट है, तो ये आप जान ही रहिए कि ये यूएन फोर्सबल हैं जो कि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके, तो इसके लिए ये लाइट ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं और सर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं एज अ न्यूट्रल body in conflict zones. Then Goa Shipyard Limited, which is a prominent defense public sector undertaking, has reached a significant milestone in indigenous shipbuilding with the formal handover of the ICGS Ajit, which is Yard 1277. It is a state-of-art fast patrol vessel to the Indian Coast Guard. तो इंडियन कोस्ट गार्ड को ये वेसल इन्होंने प्रोवाइड किया है। And ICGS Ajit, it is constructed with over 65% indigenous content, and it is in line with the government's vision of Atmanirbhar Bharat. This vessel is 51.43 meters in length and 8 meters in width, and it will displace a 330 tons and a draft of 2.5 मीटर। तो ये आप जाने रहिए, जैसे पूछ दे कि ये क्या है। ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है जो कि रैपिड रिस्पांस के लिए इसको तैयार किया जाता है, जो भी मैरीटाइम ऑपरेशंस होते हैं इनमें। Then Ministry of Rural Development, it participated in World Water Week 2026 in Stockholm. This event was organized by the Stockholm International Water Institute. World Water Week, it served as a premier global platform for dialogue
collaboration and innovation which is focused on water related issues. तो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया and it emphasized that India is committed to enhance water security through its strategic framework, which is being propelled by major initiatives like Jal Jeevan Mission and National Initiative on Water Security. Jal Jeevan Mission, it specifically target the improvement of access to safe drinking water in rural communities across India. And the National Initiative on Water Security is instrumental in bolstering investment in critical water infrastructure and practices. तो इसके बारे में इंडिया ने वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया. And this World Water Week, it is an annual assembly which is facilitated by Stockholm International Water Institute as a foremost international forum where dialogues happen. They are focused on collaboration and driving innovation in the water sector. तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो वीक है ये एज अ वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो इसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Then in international relations, United States Department and US Treasury has announced sanctions against four India-based companies for importing petroleum and petrochemical products from Iran. They announced that ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है. उन्होंने कहा है कि दिस ऑपरेशन एम्स टू सैंक्शन डिजाइन it involves sanctions designed to block all potential sources of revenue for Iran. तो जैसा कि हमें पता है कि फरवरी से यूएस और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके कंट्रोल को लेके भी काफी विवाद है और अभी तक जो है उनका सेटलमेंट नहीं हो पाया है या कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है. तो यूएस का एक स्ट्रेटेजी है कि कैसे ईरान को वीक किया जाए और इसीलिए इन्होंने अपना ये ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट स्टार्ट किया और इसके तहत जो कंट्रीज ईरान से किसी भी तरह का जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको परचेज करेंगी तो उन पे ये और जो है वो सैंक्शंस लगाएंगे. तो इसी के चलते इन्होंने इंडिया की फोर जो कंपनीज हैं इन पे सैंक्शन लगाया है. तो ये आप ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट है ये क्या किससे रिलेटेड है ये इसको आप याद रखिएगा. Then next, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and National Aerospace Laboratories, they have officially unveiled three new indigenous micro and small turbine engines in New Delhi. These engines are designed and developed domestically, include the NJ05, which provide a thrust of 5 kg, NJ50, which is capable of a 50 kg thrust, and the NJ100, which offer a thrust of 100 kg. And this is a significant step in India's aerospace engineering capabilities. According to Ministry of Science and Technology, this development of these advanced propulsion system directly addresses the critical requirement for bolstering indigenous defense technologies. तो ये indigenous जो हमारी डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा और इनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो ये पावर प्रोवाइड करेंगी यूएवीज को जो कि अभी काफी इम्पोर्टेंट हो गए हैं एंड दे आर serving as propulsions for drone interceptors and compact missile systems. तो ये important रहेगा. ये जैसे इंजन्स की जो नेम्स हैं ये पूछ सकते हैं इनसे इनका क्या यूज है ये भी इसमें आ सकता है. Then another news related to science and technology. Researchers have developed a novel smartphone enabled platform using fluorescence responsive small molecule probe called TZ48, and it will be easier for scientists to detect the Alzheimer disease in easy, fast and in less और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. तो क्या होगा इससे कि ये जो अल्जाइमर्स है इसको इजी तरीके से डिटेक्ट कर सकेंगे और उसमें स्मार्टफोन इंटीग्रेटेड फ्लोरेसेंट प्रोब का यूज जो है वो ये करेंगे. ये जो TZ48 है ये क्या काम करता है. ये एक स्पेशल फ्लोरेसेंट
मॉलिक्यूल प्रोब होता है, और ये अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड एक बायोमार्कर होता है, एमेलॉयड बीटा। इसको इजीली डिटेक्ट करता है। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो उससे एक फ्लोरेसेंस, एक रोशनी निकलती है, और उसकी वजह से ये जो एप्लीकेशन है इसको रिकॉर्ड किया जा सकेगा, पता लगाया जा सकेगा कि हाँ ये मतलब प्रॉब्लम है। और अल्जाइमर्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, और इट इज कैरेक्टराइज, इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी लॉस होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी में डिजाइन होता है, बिहेवियरल चेंजेस थोड़ा देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से लोग भूल जाते हैं चीजें, तो उसको डिटेक्ट करने में ये काफी हेल्प जो है वो करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग एल्जाइमर्स एसोसिएशन फ्रेमवर्क, इट आइडेंटिफाइज amyloid beta tau and neurodegeneration as core biomarkers for definitive Alzheimer disease diagnosis across brain, cerebrospinal fluid एंड ब्लड। तो इसका यूज करके जो है वो इसको डिटेक्शन में काफी जो है वो इजी हो जाएगा। तो मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एल्जाइमर्स जो मतलब धीरे धीरे होता है, इसमें जो हमारी मेमोरी है ये काफी कम हो जाती है, सोचने की जो पावर होती है, थिंकिंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो इसके यूज से अर्ली डिटेक्शन जो है वो हो सकेगा, और उस पे फर्दर वर्क किया जा सकेगा। और फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम इमेजिंग माइक्रोस्कोपी, ये जैसे ये टर्म से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। इट हैज इमर्ज एज अ पावरफुल सेंसिंग मोडालिटी बिकॉज फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम इज लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोब कॉन्सेंट्रेशन एंड फोटो ब्लीचिंग, और ये काफी जो है वो प्रिसिशन टेक्निक मानी जाती है। और इसको डेवलप किया गया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में। तो ये जो TZ48 है, इसको आप याद रखिएगा। और अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है डिमेंशिया, और इससे अक्रॉस द वर्ल्ड मिलियन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये इफेक्ट होते हैं। तो बाकी स्पोर्ट्स में आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी। और आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो मैगज़ीन्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप डाउनलोड करके ज़रूर रीडिंग करिए। इसके अलावा हमने यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यूपी पीसीएस स्पेशल 360 डिग्री सीरीज स्टार्ट की है। उसमें आपको डेली जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में कवर कराया जाता है। तो आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।